Hello everyone, welcome back to the Mark Darshak. So, while attending the course from the Mark Darshak mentorship program, one of the most asked question about is the how to tackle the history part, because every aspirant was asking that, sir, how to tackle the history, because it is a very broad subject, and for our upcoming examination we can't skip the history, because in the last CDS examination we have seen there are about 25 questions that are directly asked from history parts. And as we suggest the book list for the history, that is a very burdensome part and portion for the preparation. So everyone asked me that, is there any tricks and tips and any shortcuts that we can control, we can conclude the history with by saving a lot of time. So that is where I thought about the important topics and the themes that are repeated in the history portion, okay, in examination. So today we are going towards the one of the theme that is repeating about the ancient in medieval history, that is about the important terms, है ना? So today we are going to do the important terms that are required for our upcoming examination. These terms are become very crucial while you are attending the paper, because you will definitely going to find 2 to 3 direct questions, है ना, from the important terms and conditions that are asked in UPSC and any other state PCS or any examination. Okay, so without wasting any further time, let's move towards the some details about the history. So basically, history ko we can divide the history into important parts. So firstly, we can say that basically the ना stone age जो बोलते हैं ना, stone age or pre-history. So pre-history we can basically divide pre-history into two parts. Okay, so three parts. First is the Paleolithic. Okay, Paleolithic age. Okay, second is Mesolithic, and the third is Neolithic age. Okay, so here we can divide it into three phases. Okay, so basically the Paleolithic age is further divided into lower Paleolithic and upper Paleolithic age, middle Paleolithic and upper Paleolithic age. इसमें क्या होता है ना, people lived in as an hunter and gatherers. Okay, and earlier uh, life started at the basically foothills of the mountains, where rivers were narrow and easy to cross compared to the plain areas. Okay, so cave were the basically in this time cave were natural place of the residence of people, and gradually the stone started become the smaller in this age, and then after it become refined. Okay, so basically some of the important sites of Paleolithic you can just note, that is the Isampur, that ask in one of your CDS, I think CDS examination. So Isampur, okay, Isampur, that is in Karnataka. So you have to remember these sites that are asked in your examination. So was already asked in one of the examination, so you have to remember that. So why the Sampur was an center of stone tool manufacturing site. Other important sites of the are like Sohan Valley है. Okay, then after सोहान वैली के बाद में then जो कि पाकिस्तान में पाक में है. Okay, then we can say there is a बेलान वैली. ओके, जो भी मिर्ज़ापुर यूपी में. ओके, so that is about the Paleolithic age. What we have discussed about the Paleolithic age को we can divide into three parts, that is upper Paleolithic age, middle Paleolithic and lower Paleolithic age, है ना. Then here people lived in as an hunter gatherers, and their earlier life started their foothills of Himalayas, because there it will be easy for them to cross the rivers. And then and the next we can discuss about the caves are the natural place to live for these people, and some of the like an important site are Isampur in Karnataka, then after the Sohan Valley in Pakistan, and Belan Valley in Mirzapur UP. Okay, so next is the Mesolithic age. So that is the Mesolithic age. Okay, so Mesolithic age के बारे में देख लेते हैं. इट वाज हंटर गैदरस वाला ही था, हंटर एंड गैदरस वाला ही पार्ट था, है ना.
मार्क बाय द यूज़ ऑफ माइक्रोलिथिक, बेसिकली इसमें माइक्रोलिथिक जो स्टोन्स थे, स्टोन्स को मतलब कि थोड़ा मॉडिफाइड करके थोड़ा बहुत पेनाथिका बना के बाद में यूज़ करते थे. सो दैट इज़ अबाउट द मीजोलिथिक एज. बेसिकली इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, दैट इज़ द डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक शिप्स, ओके, शिप्स हो गया, फिर गोट्स हो गया, डॉग्स एंड अर्ली साइंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन विटनेस्ड. क्रॉप्स लाइक वीट बार्ले, क्रॉप्स हुई थी वीट एंड बार्लेज, क्रॉप हुई वीट, ओके, एंड बार्ले, ओके, so that are also grown in this type. First evidence of the disposal of dead in the form of burials have been found in this system. Okay, so basically है ना रोक शेल्टर्स और मिर्ज़ापुर वाला एरिया है, वहाँ पे हमें है ना फर्स्ट टाइम द एविडेंस ऑफ डिस्पोजल ऑफ बॉडी in the form of burial has been we have discovered there. Okay, next is the expression of art such as festivals, dance, hunting scenes, even the abstract painting have been found, है ना. सो इसके एग्जांपल्स देख लो, इसकी साइट्स देख लो. बेसिकली साइट्स कहाँ कौन कौन सी है. सो पहली होगी भीमबेटका. So you have to remember these sites that are very very crucial for your upcoming examination. You will find direct questions from this sites. You will definitely find one question from this ancient part of history that we are doing right now. फिर हो गया लखुदी, लखुदी यार हो गया जो भी बेसिकली उत्तराखंड में है, यूके में है. देन आफ्टर हो गया जाओरा. जाओरा कहाँ पे है, जाओरा वैली बेसिकली एमपी में. ओके, सो दैट इज अबाउट द मीजोलिथिक एज. देन आफ्टर इट कम्स द नियोलिथिक एज. नियोलिथिक, सो नियोलिथिक एज, न्यू एज भी बोलते हैं इसको, है ना. सो बेसिकली नियोलिथिक एज में क्या हुआ था कि बेसिकली शिफ्ट इन सब्सिस्टेंस, हंटिंग गैदरिंग से ना लोग एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गए, है ना. सो लोगों को एग्रीकल्चर की वैल्यू समझ में आई. देन आफ्टर पीपल स्टार्टेड टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर एंड फर्स्ट एविडेंस ऑफ द विलेज, लाइक है ना, पीपल स्टार्टेड लिविंग इन विलेज एंड फर्स्ट इंस्टेंटेट ऑफ लाइक है ना एविडेंस फाउंड हुए थे ये मेहरानगढ़ में. मेहरानगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान में हमें फर्स्ट विलेज एविडेंस फाउंड हुए थे, है ना. देन आफ्टर मतलब कि देन आफ्टर पोर्ट्स और इनिशियली मेड बाय द हैंड्स बट invention of wheel pottery and making port on the art was further refined in this time. Then after, one of the important concept that was asked in many time in our previous years, that is the burja home. Burja ask questions like why burja home is important. So this was asked in many times. Okay, so basically ये JNK में basically underground pit डिवेलिंग के लिए important है, के लिए अंडरग्राउंड पीट होते थे, मतलब कि गड्ढे खोद के उनमें मतलब कि जो सरप्लस ग्रेन होता था उसको स्टोर करते थे. ओके, सो दैट इज़ वाई टू अंडरग्राउंड. सो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड से आई यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, अंडरग्राउंड फॉर ग्रेन्स, फॉर ग्रेन्स. ओके, so that is why the Neolithic age. So let's discuss what we are study, that is the Paleolithic age. इसको देख लेते हैं. लोअर और अर्ली पेरियोलिथिक एज एक्सटेंड फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली, ये वाला टाइम दे रखा है, escalating a substantial portion of the ice age, ultimately and primitive stone age and hand axe and choppers. Then out ओल्ड ऑन टूल्स हो गया, है ना, फ्लैंक्स यूज फॉर कटिंग एंड स्कारपिंग दीज ओल्डर. ओके, फिर हो गया आर्क्यूलिन टूल्स हो गया. देन आफ्टर मिडाइवल पेलियोलिथिक, फिर हो गया नेवासान इंडस्ट्री. ए टर्म नेवासान इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेवासान इंडस्ट्रीज. ए टर्म कोइंड बाय एसडी सांखिला, Sankhalia in 1960. It is associated with the Middle Paleolithic period, named after Nevasa site in Maharashtra. Nevasa basically पूछ सकते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में. This industry refers to distinctive technological characteristic and tools types identified during the period. Then after the upper and later upper Paleolithic age span basically ये 40,000 BCE से 10,000 BCE के बीच में था. Later Paleolithic coincide with the last phase of ice age. Okay, so we have discussed it already. फिर हो गया मीजोलिथिक एज आ गया, जो कि कब से कब तक था, 10,000 BC से और 4,000 BC के बीच में था. सो ये बेसिकली जो नियोलिथिक एंड पेलियोलिथिक के बीच का टाइम था. हियर देयर आर सबसिस्टेंस चेंजेस इन द
टाइप ऑफ लिविंग एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके, सो इस टाइम पे माइक्रोलिथ्स आने लगे. माइक्रोलिथ्स बेसिकली स्मॉल स्टोन टूल्स थे जेट आर फ्लैंक्स जिनको मतलब कि यूज़ किया जाता था हंटिंग गैदरिंग्स में. ओके, हंटिंग एंड गैदरिंग्स में. ओके, मिनिएचर स्टोन टूल्स हो गए. फिर यूजुअली मेड ऑफ क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका कैलिकोडोनिया चार्ट बोथ ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड नॉन ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गए. These are were smaller in size compared to the larger implements of the Paleolithic age. Okay, फिर हो गया Pleistocene epoch है ना, also known as the Ice Age. It spanned from approximately time and that characterized by repeat of glacial and integrated. Okay, then after Holocene epoch हो गया. ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द नियोलिथिक एज. नियोलिथिक एज में बेसिकली क्या था, नियोलिथिक पीरियड था. नियोलिथिक में नॉर्दर्न इंडिया में अराउंड 8,000 to 6,000 BC के आसपास था. सर्टेन रीजन इन द साउथ एंड ईस्ट इंडिया में भी इमर्ज हुआ था, है ना. कल्टीवेशन ग्रो हुआ था, फिर ग्रोइंग क्रॉप्स की तरफ जाए थे, जैसे रागी एंड हॉर्स ग्राम की तरफ, है ना. यूज़ ऑफ शार्प एंड पॉलिश स्टोन टूल्स, है ना. ये एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आया था जब उन्होंने एग्रीकल्चर में ये शार्प टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. फिर हो गया ये ब्लैक बर्न वेयर, ग्रे वेयर, मेट इम्प्रेस्ड वेयर, है ना. ये न्यूलिथिक कम्युनिटीज़ बेसिकली एसेंशियली हैंडक्राफ्टेड पोइट्री एंड लेटर एडोप्टेड द पोर्टर्स व्हील. टाइप ऑफ पोइट्री इंक्लूड ब्लैक बर्न नीस्ड वो वेयर, फिर ग्रे वेयर हो गया, मेट इम्प्रेस्ड वेयर हो गया. ओके, सो कुलाहाती बोलते थे बेसिकली हॉर्स ग्राम को. हॉर्स ग्राम कुलाहाती. ये हिट कैन बी आस्क्ड, जैसे कि लास्ट सीरीज है ना CAPF हुआ था, इन दैट देयर वाज एन विरही, है ना. टर्म आस्क दैट इज विरही दैट इज यूज फॉर द राइस. So in this time there can be inequation related to Kulahati, है ना. So you have to remember Kulahati किसको बोलते हैं, हॉर्स ग्राम को. ओके, सो नेक्स्ट इज द चेल्कोलिथिक एंड कॉपर स्टोन एज. सो बेसिकली चेल्कोलिथिक एंड कॉपर स्टोन एज के बारे में देखते हैं. बेसिकली ये 3000 BC to 500 BC के लमसम था, है ना. साइमल्टेनियसली यूज द मेटल एंड स्टोन टूल्स हैपन फ्रॉम दिस पीरियड. कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द एज. इसको कॉपर को मतलब कि जो मेटल थे उनको अयाज बोलते थे, श्याम अयाज, कृष्ण अयाज. ओके, agriculture plays an important role. Cultivation of wheat, rice, bajra, several pulses like lentils and black grams. Communities engaged in domestic domestication of various animals such as cows, sheep, goat, pigs and buffaloes. फिर आहार बनास कल्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू रिमेंबर दैट ये आहार एंड बनास रीजन किससे रिलेटेड है, बेसिकली ये प्रेजेंट डे राजस्थान में है, राजस्थान वाला पार्ट है. कैरेक्टराइज बाय डिस्टिंक्टिव black and red ware pottery, earlier use of copper tools and evidence of एग्रीकल्चर एंड सेटल विलेज लाइफ. सो बेसिकली यहाँ पे कॉपर का टूल्स क्यों यूज़ होते थे, क्योंकि बेसिकली राजस्थान में खेतरी नामक है ना जो माइन है, वहाँ पे कॉपर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है. सो दैट इज़ वाई दे माइंड द कॉपर फ्रॉम देयर एंड देन यूज इन द बनास, आहार बनास रीजन. ओके, then after the black and red ware, the distinctive type of pottery associated with various ancient culture dating from Chalcolithic period to the Iron Age. Okay, characterized by its unique two-tone color scheme. The interior and upper portion of the vessel are black, white. The interior and lower portion are the red. Okay, देन आफ्टर द ब्रॉन्ज एज के बारे में पढ़ लो. बेसिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड डिस्कवरी ऑफ ब्रॉन्ज एंड एलोई ऑफ टीन एंड कॉपर. ये भी पूछ सकते हैं, ये साइंस वाले पोर्शन में पूछ सकते हैं कि ब्रॉन्ज किसका एलोई है ना. ये हो गया टीन का, है ना. SN, टीन को SN बोलते हैं एंड कॉपर को CU. ओके, SN प्लस CU का एक एलोई प्रोवाइड करता है एक अल्टरनेटिव फॉर टूल प्रोडक्शन ऑफरिंग इंक्रीज्ड रिजिडिटी एंड ड्यूरेबिलिटी कंपेयर टू कॉपर टूल्स. सो most prominent brown age civilization in India was the Indus Valley civilization, also known as the Harappan civilization, which flourished in the northwestern region of Indian subcontinent. Okay, फिर orchard color pottery है. So basically it is a name for its distinguished orchard and red orange color which results from the use of iron rich clay, specific firing techniques. OCP, that is orchard colored pottery, is primarily found in the Ganga Yamuna's Doab region and other parts of northern India. Okay, so next moving toward the Harappa or Indus Valley civilization. Okay, so इसकी terms देख दो. Let's start with the terms. Harappan civilization के बारे में you may be aware about and you should read about the Harappan civilization. Basically the town planning and important terms.
from the Harappan civilization is quite important for your upcoming examination. So first is the citadel. Citadel क्या है, फोर्ट्रेस था जो कि बेसिकली सेंटर में था, सेंटर ऑफ द स्टेट और सेंटर ऑफ द सिटी के बीच में, सिटी में था, जो कि एक हाईएस्ट ग्राउंड था अबव, जो कि सिटी के जो मेन एलिवेशन होता है उससे से ऑब्वियसली हाई था, मतलब कि उसका एलिवेशन हाई था, प्लस एक फोर्ट्रेस था, एक है ना, हम कह सकते हैं किला था जिसको सिटाडिल बोलते थे. देन आफ्टर गबरबंस, गबरबंथ इज बेसिकली ओल्ड डेम्स, ए लार्ज ओल्ड डेम्स. सो ओल्ड डेम्स थे ना, ओल्ड बांध, पुराने बांधों को जो गबरबंद बोलते थे. फिर मेलुहा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. मेलुहा है मतलब कि इंडस रीजन को मेलुहा बोलते थे उस टाइम पे. ओके, इंडस का रीजन था ना जो है ना, इंडस बेसिन, उसको उस टाइम पे मेलुहा बोलते थे. फिर हो गया दिलमून एंड मगन. दिलमून, दीज वर द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड जियोलॉजिकल लोकेशंस इन द एंशिएंट वर्ल्ड. दिलमून centered around Bahrain and Magan, encompassing the Oman Peninsula, were known for their maritime capabilities and trade with Mesopotamia and the Indus Valley civilization. So basically, the question can be asked that Dilmun and Magan किससे related है? So basically ये Indus Valley civilization से related है ना. Dilmun is basically centered around the Bahrain and Magan is basically the Oman Peninsula के near में है ना. So that can be asked in your upcoming examination. Then after the pictographic is a form of writing that use image and drawing. So basically pictography में the writings, pictography, graph यानी लिखना है ना, पिक्टो यानी पिक्चर. सो बेसिकली है ना, मतलब जहाँ पे मतलब कि पिक्चर्स के माध्यम से लिखा जाए ना, सो दैट इज़ द पिक्टोग्राफी. ओके, so then after the logo symbolic is a writing system that combines logogram symbols representing words and morphemes and syllabic signs, symbol representing syllables to convey meaning and sound. Okay, Harappan script is argued to be either pictographic and logosyllabic or combination of both. As it remains undeciphered, it is difficult to say for sure that what kind of script it is. Okay, then next term is the बोस्टोफेडोन एक है ना एंसेंट राइटिंग स्टाइल है जो कि राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट राइटिंग करती है. जैसे कि पहले तो लेफ्ट टू है ना, राइट टू लेफ्ट चला गया, देन आफ्टर लेफ्ट टू राइट, फिर ऐसे चलेगा है ना. सो दैट इज अबाउट द बोस्टोफेडोन है ना राइटिंग स्टाइल. ओके, देन आफ्टर ब्रोंज कास्टिंग क्या है ना, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ प्योरिंग मोल्टन ब्रोंज इनटू द होलो मोल्ड टू क्रिएट ए पॉजिटिव ब्रोंज स्कल्पचर और ऑब्जेक्टिव. सो बेसिकली एक मोल्टन ब्रॉन्ज होता है जिसको आप है ना पोर करते हो एक होलो मोल्ड में, जो कि एक किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट को इसका मतलब कि उसमें डाल देता है. देन आफ्टर द सिरे परड्यू, बेसिकली ये प्रोसेस बाय विच ए डुप्लीकेट मेटल sculpture is cast from the original sculpture. Okay, so that is about the Sire Perdue. Then after red and black ware, basically this type of in this examination, in the latest examination of CDS 1 2025, there was an question related कि which one of the following is not the pottery, ancient India's pottery. So वो भी याद रखना कि कौन सा पोट्री है. फिर हमने OCB भी पढ़ लिया, ऑर्चर्ड कलर्ड पोट्री हो गया, फिर रेड एंड ब्लैक वेयर पढ़ लिया. ओके, so you have to remember them. Pottery style characterized by red ware adorned with black design offering depicting trees and circles. फिर हो गया अर्ली वैदिक एज और ऋग्वैदिक पीरियड. इसमें हो गया जिसमें कुंभा बेसिकली मॉडर्न डे काबुल को बोलते थे, हिमावत हिमालय को. फिर हो गया मुंजावत बेसिकली हिंदूकुश, मॉडर्न डे हिंदूकुश को बोलते थे. सप्त सिंधु, 7 नदियों का नदी मतलब कि रिवर्स का था, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, एरिया विच वेयर आर्यंस होते थे. आर्यंस जो कि एक है ना लिंग्विस्टिक ट्राइब थी जो कि बेसिकली जो सेंट्रल वहाँ से वाला पार्ट से आई थी, जो यूरोप से आई थी है ना, जर्मनी वगैरह इस टाइप से इस साइड से आई थी ना. सो दीज आर द आर्यन ट्राइब्स दैट आर लाइक ना सेटल्ड इन इंडिया, द इंडियन टेरिटरी. सो बेसिकली जो 7 है ना रिवर्स की रिवर्स थी, सो उनका भी याद रखना है कि कौन सा का मतलब कि कौन सा एंसेंट नाम है. ओके, सो बेसिकली वितासा हो गया जेलम, देन आफ्टर हो गया अस्किनी चेनाब, विपास हो गया व्यास,
पारुसिनी रावी को बोलते थे, सुतुद्री सतलज को, सरस्वती एन एंसेंट रिवर मेंशन इन द वैदिक टेक्स्ट। सो सरस्वती तो वी नो कि सरस्वती एक एंसेंट है ना रिवर है जिसको काफ़ी ज़्यादा हमारे वेदास में मेंशन है ना। सो दैट इज़। फिर हो गया वर्णा। वर्णा 4 डिवीजन, सोशल डिवीजन इन द सोसाइटी थे। ब्राह्मणा थे, क्षत्रिय थे, वैश्या थे, शूद्रा थे, बेस्ड ऑन प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। नोट उस टाइम पे हेरिडेटरी नहीं थे, अर्लियर वैदिक पीरियड में ये अर्ली वैदिक ऋग्वैदिक पीरियड में ये एक है ना ऑक्यूपेशन पे बेस्ड थे, हिरार्की बेस्ड नहीं थे। फिर थी सभा। सभा इज द असेंबली ऑफ एल्डर्स और प्रोमिनेंट ना इंडिविजुअल प्राइमरली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस। बेसिकली विमेन भी इसमें पार्टिसिपेट करती थी। ओके एंड कभी कभी तो ये देखा गया है कि सभा है ना जो असेंबली थी, जो सभा थी, वो किंग को भी चूज करती थी। सभा किंग को भी ले ना मतलब कि इलेक्ट करती थी। ओके सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सभा दैट टाइम। समिति था broader assembly that include common people, okay, playing a role in advising and consenting to decision making made by the decision making authority। फिर हो गया विधाता। विधाता किसको बोलते थे? द अर्ली वैदिक ट्राइबल assemblies with religious and social functions often associated with rituals and community welfare। ओके फिर हो गया पानीज। पानीज क्या था? ग्रुप ऑफ पेनीज, किस वेल्थी मर्चेंट्स थे, often seen as the trader who control the trade। फिर हो गया लेटर वैदिक पीरियड आ गया, इसमें टर्म्स थी आर्यवर्त। आर्यवर्त नॉर्दर्न इंडिया को। फिर हो गया मध्य देशा सेंट्रल इंडिया को। फिर हो गया दक्षिणापथ बेसिकली सदर्न इंडिया को। ये टर्म्स यूज हुई थी। आर्यवर्त भी याद रखना, मध्य देशा भी याद रखना, दक्षिणा पथ भी याद रखना, जो कि सदर्न इंडिया को बोला गया। फिर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स देख लेते हैं। फिर हो गया अस्वापा बेसिकली अकाउंटेंट को। फिर हो गया बलि सदाका, द ऑफिसर ऑफ कलेक्टिंग बलि। बलि इज बेसिकली एन वॉलेंटियरली टैक्स, है ना, दैट पीपल पे टू द किंग। ओके सो दैट इज द कॉल्ड बलि। बलि सदाका। सदाका कौन था? ऑफिसर फॉर कलेक्टिंग द बलि। फिर होगा भागा दुगा बेसिकली एक टैक्स कलेक्टर था। फिर हो गया ग्रामीणी बेसिकली विलेज चीफ हु फंक्शन एज द लीडर ऑफ ट्राइबल चीफ। फिर हो गया क्षाता हो गया कीपर ऑफ किंग्स हाउस होल्ड। फिर हो गया मध्यामासी इज मीडिएटर इन द डिस्प्यूट्स। देन आफ्टर हो गया पालागाला मैसेंजर्स था। फिर हो गया रातनीन ऑफिशियल्स थे, है ना। फिर सेनानी हो गया, प्रोविंशियल गवर्नर को सेनानी बोलते थे। देन आफ्टर ग्रीबा एंड उगारा बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स को बोलते थे। स्थापति बेसिकली कमांडर इन चीफ। विड हो गया नॉलेज, विद्या से विड हो गया, है ना। फिर राजन हो गया जिसको बोलते थे गोपति, जनास्या गोपा बेसिकली किंग होता था। फिर हो गया पुसान इज गार्डियन ऑफ हॉर्स एंड हर्डर्स स्टे कैटल्स। ओके उसको पुसान बोलते थे। पुसान को पशु से याद रख सकते हैं पुसान को। ओके देन द इकोनॉमिक टर्म्स of the the Vedic period। okay that is the उर्वरा बेसिकली उर्वरा भूमि बोलते थे। उर्वरा एग्रीकल्चर लैंड को है ना, कल्टिवेटेड लैंड को बोलते थे। फिर हो गया वज्रपति बेसिकली ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पास्टोरल लैंड थे। व्रीहि जो मैंने बताया कि ना प्रीवियस ईयर में रिपीट भी हो चुका है, आई थिंक इन CAPF और CDS दोनों में रिपीट हो चुका है व्रीहि। फिर हो गया यावा क्रॉप ऑफ बार्ले। फिर अवल हो गया वेल्स। अयाज हो गया जिसमें कॉपर और ब्रोंज को बोलते थे, कृष्ण अयाज इन श्याम अयाज। ओके फिर हो गया धान यानी ग्रेन। फिर हो गया गोमत यानी वेल्दी पर्सन विथ केटल वेल्थ। गोमत है ना, जिसके पास गोमत यानी गाय थी, केटल थी। ओके सो दिस टाइम मतलब केटल को ही वेल्थ मानते थे। ओके देन आफ्टर गोपति इज बेसिकली मोनार्क और राजा हुज मेन ड्यूटी वॉज टू प्रोटेक्ट द काउ। फिर हो गया हिरण्य का, जो हो गया गोल्ड स्मिथ, सुनार। ओके नेक्स्ट आप कुलिया किसको बोलते थे? केनाल को बोलते थे। फिर गोदुली है ना, यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द टाइम। फिर हो गया कुशीदिन मनी लेंडर को बोलते थे। फिर हो गया निक्सा, कृष्णा, सातमाना बेसिकली ये नाम बना गोल्ड कॉइन्स थे, है ना। फिर हो गया पाला, लांगला और सिरा, प्लाऊ हो गया। ओके रिलीजियस, नेक्स्ट इज द रिलीजियस सोशल टर्म्स दैट इज द अदेवार्यु इज द प्रीस्ट ऑफ यजुर्वेदा। फिर हो गया अर्णिका बेसिकली है ना वैदिक टेक्स्ट कंपोज बाय द हर्मिट्स इन द फॉरेस्ट। इनको अर्णिका बेसिकली फॉरेस्ट से रिलेटेड है, सो यू कैन रिमेंबर कि अर्णिका से फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा।
फिर हो गया अश्वमेध, अश्वमेधा इज यज्ञ थे, यज्ञ था, है ना, सेक्रीफाइस था एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल पैरामाउंसी। अश्वमेधा इज दैट, है ना, मतलब कि स्टेट में टेरिटोरी से रिलेटेड था, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, जहाँ पे हॉर्स को किंग खुला छोड़ देता था, जहाँ तक हॉर्स अनइंटरप्टेड जाता था, दैट कंट्री इज बिलोंग टू द किंग अंडर द सुजर्निटी एंड सोवर्निटी ऑफ द किंग, and if someone tried to stop the king, then he have to fight with the king, and if he get defeated, then the territory will be included in the king's territory. Okay, and after this yagya, the horse will be sacrificed. Okay, फिर हो गया अग्निहोत्रा। अग्निहोत्रा को के बारे में देख लो, एक सिंपल डोमेस्टिक सेक्रीफाइस थे। दसायूज बेसिकली ओरिजिनल इनहेबिटर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दास्यूज एंड दसायूज, है ना। फिर हो गया दासू हत्या, बेसिकली स्लोटर ऑफ दास्यूज, ओके, जिनको जाना दासू हत्या भी बोलते थे, जिन्होंने स्लोटर किया था दसायूज को। फिर हो गया गोखना, गोखना बोलते थे गेस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड हु फेड ऑन द केटल्स। सो बेसिकली गोखना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। नियोगा, नियोगा इज अ प्रैक्टिस ऑफ अलाउिंग ए चाइल्डलेस विडो टू कोहेबिट विथ हर ब्रदर इन लॉ अंटिल द बर्थ ऑफ ए सन। सो बेसिकली नियोगा एक, है ना, प्रैक्टिस थी जिसमें कि अगर इफ द द एल्डर ब्रदर गेट सेक्रीफाइस, देन ये द यंगर ब्रदर शुड कैन मैरी विथ हर लाइक हर ब्रदर्स वाइफ। ओके, so that is the related to yoga. Then after Dikshita, Dikshita is one of the one who had undergone imitation for Vedic sacrifice. Dvij, Dvij is twice born as the वर्णा सिस्टम, बेसिकली है ना, द्विज बोलते थे जो अपर थ्री वर्णास थे ना, क्षत्रिय वैश्य एंड ब्राह्मणा क्षत्रिय एंड वैश्य, इनको है ना द्विज बोलते थे, ट्वाइस बॉर्न, वाइल द फोर्थ वन इज द शूद्रा, उसको नहीं बोलते थे, इन तीन को ही बोलते थे, अपर वर्णास थे तीन को। फिर हो गया गविष्ठी, गविष्ठी इज द वॉर एंड रेड फॉर द काउस, क्योंकि इस टाइम पे काउस का एक, है ना, इम्पोर्टेंट मतलब, है ना, एक प्रॉपर्टी सी थी, सो दैट इज़ वाई देयर इज वॉर्स रिलेटेड ऑन द काउस। फिर हो गया राजसूया, राजसूया इज यज्ञ था, है ना, ऑफ एंशिएंट टाइम, जहाँ पे मतलब कि वैदिक पीरियड में मतलब एक सेक्रीफाइस था, है ना। ग्रांट रॉयल कंसर्वेशन कंजर्वेशन सेक्रीफाइस परफॉर्म बाय द किंग to legitimize their sovereignty, proclaim imperial authority and establish dominions over neighboring kingdoms. Okay, फिर हो गया संहिता, संहिता हो गया कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स हो गया। फिर हो गया सावित्री, सावित्री गोडेस ऑफ होम द गायत्री मंत्रा इज डेडिकेटेड, बेसिकली गायत्री मंत्र किसको डेडिकेटेड है, सावित्री को, है ना, गोडेस सावित्री को। फिर हो गया श्रोता, श्रोता इज द ग्रांड सेक्रीफाइस। फिर हो गया उदय उदगा, उदगात्री बेसिकली प्रीस्ट था सामवेदा का, बेस इसको याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मतलब कि डायरेक्ट पूछ लेता है, सामवेदा अथर्ववेदा, है ना, यजुर्वेदा, इनके मतलब कि नाम इस एक तरफ नाम दे देता है, दूसरी तरफ प्रीस्ट के नाम दे देता है। ओके, फिर हो गया उपनयन, उपनयन बेसिकली लीडिंग फोर्थ ए बॉय टू स्टडी अंडर ए टीचर हो गया। फिर हो गया दूही थ्री बेसिकली डॉटर मिलिचर ऑफ काउ। ओके, next is the age of Mahajanpadas, so we will do the Mahajanpadas also. Okay, so we will do the Mahajanpadas. Mahajanpadas basically पहले तो फिर जन थे, फिर ना मतलब कि कंसोलिडेट हुए, जनपदा बने, फिर जनपदा से और कंसोलिडेटेड हुए, महाजनपदास बने। सो बेसिकली 16 महाजनपदास थे जो कि मेंशन हुए थे, जिसमें काफ़ी ओलिगार्की थे, फिर मोनार्की भी थे। सो हियर द महाजनपदास वर डिवाइडेड। ओके, सो इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं कि पहला हो गया निक्सा, निस्का इन सातमाना कॉइन्स थे। फिर हो गया वेसा, वेसा इज द मर्चेंट स्ट्रीट को बोलते थे वेसा। फिर हो गया बलि साधगा, टैक्स ऑफिशियल्स हु कलेक्ट द बलि। हो गया गृहपतिज, गृहपति बेसिकली हेड ऑफ द हाउस होल्ड हु कैन बी रिच पीजेंट्स। फिर हो गया महामात्रा, जनरल टर्म्स फॉर ऑफिशियल्स। फिर हो गया मंत्री, दैट इज फॉर मिनिस्टर्स। और सेना नायिका बेसिकली कमांडर इन चीफ। फिर हो गया आयुक्ताज, आयुक्ताज टर्म्स फॉर ऑफिशियल्स। ग्राम बोझका, ग्रामीणी, ग्रामिका बेसिकली विलेज एडमिन थे। सैनिया, सैनिया इज द वन विथ एन आर्मी और यूज्ड, मतलब सेना थी जिसके पास, यूज्ड फॉर बिम्बिसार। देन आफ्टर द सर्वक संत्रातका, बेसिकली डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय, है ना, इसको बेसिकली महापद्मनंदा के लिए यूज़ किया गया था। फिर एकरत हो गया वन सुजेरिन, है ना। फिर हो गया हेदापसिस जेलम के लिए। फिर हाइपसिस हो गया ब्यास के लिए। ओके, सो दीज आर द टर्म्स दैट आर इम्पोर्टेंट। एंड देन आफ्टर देर आर इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म।
Okay, Firmorian Empire. So I think for today we have to end this lecture here. Tomorrow we will move towards next set of important terms. We will start with the Buddhism, then after we move towards the Jainism, and we will try to complete the all the ancient terms by the lecture of tomorrow. So that is for today. I hope you learned these tricks, and I can say that you will directly found 4 to 5 questions in your examination. 4 to 5 questions from this PDF that I will provide in the Telegram channel. You can join there by the link will be provided in the Telegram description of this video, and you will also find a other link of Google form where you will get to connect with me through the mentorship program, that is the Mark Dasak mentorship program, that is the that is free for now. You can join that and avail the services there. And you, as I told you, that I got the idea of these important themes and terms that are important for examination from the views and from the problems that the aspirants are facing. So if you have any problem, then you can just ask me for the video that I will provide to you with the tricks and tips that are important, and with the PYQs that are crucial for your exam preparation. So that is for today. We will meet tomorrow with the next terms and conditions. Okay.